हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में सीओ क्यूपी 17 के टॉपर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने 2024 के इस सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में सीओ क्यूपी 17, जो कि मास कम्युनिकेशन का पेपर कोड है, उसमें टॉप किया है। ठीक है। तो इन सभी टॉपर्स से मैं आप सबको मिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं फर्स्ट रैंक होल्डर आफरीन चौधरी जी। उसी के साथ ओशिन भाटिया जी है, सूबिया यूसुफ है, सिद्धार्थ है, सैयद जमान जी है और जयवीर फौजदार जी है। तो ये टॉपर्स आज हमारे साथ हैं, जो कि वन बाय वन आपको कुछ टिप्स शेयर करेंगे। अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आप सब लोग जानना चाहते हैं कि टॉपर्स ने किस तरीके से पढ़ाई की। तो आई होप कि वो चीज़ आपको आज के सेशन में मिल पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जयवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी किस तरीके से रही और क्या टिप्स जो है आप नए एस्पायरेंट्स को देना चाहेंगे। First of all, good evening, sir. Good evening, all of you, and congratulations, everyone, for all the toppers. And of course, I'm very grateful to you, sir, for your guidance and for your support. Tips are very simple. I was continuously following whatever you are giving to us, whatever you are teaching to us. And the main thing I have realized that it is not an exam of 1 month, 2 months, 6 month preparation. It is an exam of your overall evolution. That's how you have been learn things in overall your academic performance or in your present in a coaching or college like that. Whatever you have learned till now, it is the exam of that. And after that, how you are summing it up and how you are summarizing it, it's the most important thing. And last one, I want to say the support and the guidance is very much. It's not about that you just start reading books and things like that. The support and the guidance is very important in this. And consistency is also important. And one more thing I want to add, that a little bit luck is also important. It's not only about that hard work. It's also about the luck. यस, वेरी नाइस जयवीर जी। अब हम चलते हैं सबसे फर्स्ट रैंक होल्डर आफरीन चौधरी जी के पास में। आफरीन जी, आपने तो कमाल ही कर दिया इस बार, मतलब 296 मार्क्स। किसी को भी पूछो तो भाई इतने मार्क्स कौन लाता है, इसलिए तो हमको टेंशन हो गई है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी टिप्स अपनी ओर से दें जिससे स्टूडेंट्स जो हैं, नए जो एस्पायरेंट्स हैं, वो अच्छी प्रिपरेशन कर सके और टू द पॉइंट पढ़ाई कर सके। किस तरीके से आपने हाईएस्ट मार्क्स को जो है गेन किया है, प्लीज गिव योर टिप्स। So I think the first step or something that will be very consistent, क्योंकि अब तक हमारा जो syllabus है या syllabus भी नहीं but जो pattern exam को set नहीं हुआ है, so the first thing I think will be really helpful is giving mock tests of all kinds, taking it subject wise as well, and doing a collection of it जो सर आपके आपने काफी बना रखे थे, so that was really helpful because once you do that आपको एक idea हो जाता है कि कैसे questions आ सकते हैं, and once you know that and you've attempted enough questions, you're able to handle a question paper, you know, when it comes to you. And last year it was quite tough, this was relatively simpler, but once you attempt papers that are easy and then extremely difficult, you reach a good little sweet spot where you're able to attempt you know, your exam really well with time management. So I think that is the key, like something really really important which I've followed in almost every competitive exam, especially this. And of course, you know, एक दो महीने से नहीं होगा, you need to put a lot of time and dedicated systematic time management, should not, you know, not to slog but to work really hard and smart. सिद्धार्थ जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे जो आफरीन चौधरी जी कह रही थी। गुड इवनिंग सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। ऐड तो टॉपर की स्ट्रेटजी में मैं क्या ही ऐड कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, दो क्वेश्चंस जो मुझे लगता था स्टूडेंट्स, खासतौर पर मेरे जैसे स्टूडेंट से पूछेंगे, एस्पिरेंट से, कि जैसे मीडिया के बारे में कोई फॉर्मल नॉलेज कभी नहीं रही, क्योंकि मैं बैकग्राउंड से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। एंड सेकेंडली, प्रिपरेशन टाइम भी मेरे पास 1 महीने का ही था, क्योंकि आपको याद हुआ, मैसेज ड्यू ऑन 2 फरवरी, जब सीयूईटी की जो रजिस्ट्रेशन डेट्स भी एक्सटेंड हो गई थी। तो मैंने तो एग्जाम टाइम में भी फॉर्म फिलअप नहीं किया। हालांकि ये बात जरूर रही कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इस महीने में थोड़ी डिफरेंट थी कि मेरे पास नोट्स लिखने का बिल्कुल भी समय नहीं था। तो मेरा ये जो आउटकम आया है, जैसा भी है,
इट इज ओनली ड्यू टू कि मैंने आपके लेक्चर्स को, खासतौर पे नोट्स को बार बार देखा और उस नॉलेज को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया विद द टेस्ट सीरीज कि वो रिवाइज होता रहे। और इस बात में खासतौर पर जो सवाल आए क्वेश्चन पेपर में, उसमें मुझे एक बात महसूस हुई कि आप जो बार बार कहते हैं कि अपने आप कान खुले रखो, तो वैसे ही हर मॉक टेस्ट को जब भी एस्पिरेंट्स आप देंगे तो ये बात ध्यान में रखिए कि उनके सॉल्यूशंस आप देखें और उसमें से जो आपको लगता है कि पकड़ने वाली चीजें या थोड़ी रिसर्च करने वाली चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा 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 आप देख लें। क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे उसको बिल्कुल ऐसे कॉपी में नोट करके नहीं लिखना है। अगर वो क्वेश्चन आता है तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको दिख जाएगा कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। सो यू आर तो सेइंग मेरी कि आपने लेक्चर्स और नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लगाते हुए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है एम्पावर किया, जिसके वजह से जो है आपके स्कोर अच्छे बन पाए। आई थिंक जी यू सर, बिल्कुल। यस। एंड ओशिन जी, आप काफी पुराने स्टूडेंट हैं हमारी, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में? Good evening, sir, and thank you for having me here today. First of all, I would like to thank you for your invaluable support and guidance throughout my journey, and of course, the Media Exams platform for having provided us with the best, top notch, concise, and comprehensive study material and simplified video lectures. Videos are everywhere on YouTube nowadays as mass communication is starting to become a popular field. But you have simplified it. So when we watch those lectures, it's easier to comprehend the notes and the other books if you are referring any. So I would really like to thank you. And next, I'm truly excited to share my insights and experience with those aspirants who are planning on for appearing in 2025. I would like to say that newspaper reading is a must. It's an thing that some people think it's easy to underestimate it because with the coming of YouTube, people think we can cover current affairs with videos and लास्ट में देखेंगे करंट अफेयर्स। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो ज़रूर करिए एटलीस्ट 6 मंथ्स। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है उन्हें पता है कि उसमें से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और दूसरा, जब आप वीडियो लेक्चर्स देखें तो एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप अपने बुलेट नोट्स लिखें। बुलेट नोट्स कोई आपको बड़ा-बड़ा नहीं लिखना, बस 1 पेज या 2 पेज मैक्सिमम जो एक वीडियो को कवर कर ले। और ये इसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब लास्ट मोमेंट होगा और आपके पास टाइम नहीं होगा उन 3-4 दिन में सब कुछ रिवाइज़ करने का। आप बस उसे उठाएँगे, उसको पढ़ेंगे और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। एंड बिल्कुल ठीक थर्ड बात। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ स्टेइंग कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स। मोटिवेशन बहुत जल्दी हमें मोटिवेट करते हैं हम खुद को और फिर वो 2-3 दिन तक लास्ट करता है। लेकिन एक तरह से ऑनेस्ट होना अपने साथ और कंसिस्टेंट रह पाना ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो जो लोग कंसिस्टेंट रह पाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनका सक्सेस गारंटीड है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए कि रोज़ इतने लेक्चर्स देखने हैं, रोज़ इतने नोट्स रीड करने हैं, रोज़ अपने जो बुलेट नोट्स हैं उन्हें रिवाइज़ करना है। तो आपने कहा कि न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, जिससे आपको जो है सोशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में यस सर। एक कॉन्शियस या सब कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपकी होती है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो एक रिदम में पढ़ने से, होती डेली रहती बेसिस हैं। पे पढ़ने से काफी आपको इम्पावर, जो है आपको कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें काफी हेल्प मिलती है। और इसी के साथ आपने कहा कि यस। सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए। ऐसा नहीं है कि आप भर भर के किताबें भरते जा रहे हैं, नोट्स आपने देख लिए। देखो, मैं जो नोट्स बनाता हूँ वो पहले से सिंप्लीफाइड है पहले तो। और उसमें जो अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी होती है, फॉर यस एग्जाम्पल सर। कि रेडियो की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो आपने एक बार एक कहानी सुन ली मेरे से लेक्चर में, तो वो अंडरस्टैंडिंग में है। अब आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर नोट्स करने हैं, ताकि जब आप उसको देखो तो आपको पीछे की कहानी भी जो है याद आ जाए। वेरी नाइस, आपने काफी अच्छे से बताया। एग्जैक्टली। बिल्कुल। सूबिया जी, आप काफी देर से वेट कर रही है, आपका नंबर आ गया है। प्लीज आप बताइए, एम्पावर कीजिए एस्पायरेंट्स को कि किस तरीके से प्रिपेयर करें, और आपकी जर्नी कैसे रही, कौन से आपकी टिप्स हैं जो आप देना चाहते हैं। ओवर टू यू। So, hello everyone. My journey was a bit different, like what Oshin said and what Arpan said, because I started my preparation like only a month before exam. I joined media exams like only a month before. For
even like Osim said, कि newspaper पढ़ना regularly is very important. But I covered all the current affairs from YouTube only because I had no time. I had very less time. First, uh, जब I found this media course, तो like पहले तो I thought कि I'll cover all of the things तो खुद से ही. But अगर मैं ऐसा करती तो obviously मेरा सारा टाइम कंटेंट ढूंढने में ही चला जाता. हम्म So then I found media exam app. Then I joined those course and it helped me a lot because everything was at one place. जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि आई कंटेंट यहाँ ढूंढ रही हूँ. I have done my graduation in journalism only. So पहले से भी काफी नॉलेज थी about media. So मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं in the हम्म media part. हम्म And current affairs I covered from YouTube, and I managed time. Time management was very important at that time because I was doing a job along with the study. हम्म So I used to study from evening to night. But उस 1 month में I consistently studied for 1 month straight. मतलब बहुत कम टाइम था but still. बट हाँ, अगर मेरे पास मुझे मीडिया एग्जाम नहीं मिला होता था आई कुड हैव नेवर स्कोर्ड दिस मच जितना आ गया है. थैंक यू माय डियर टॉपर्स, मैं आपसे थोड़ा सा आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में भी पूछना चाहूँगा कि आपने एजुकेशन कैसे की है और आप अपना आगे का ड्रीम क्या सोच रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द आफरीन चौधरी जी, आप प्लीज़ बताएंगे कि आपका कैसे क्या रहा और क्या आप आगे सोच रहे हैं. So by degree, I am a graphic designer, and उसके बाद I changed my career, and now I'm a writer and promo producer with Pocket FM, and that's because writing is something that's very important to me. It's something like a passion that I've been very interested in for a very long time, and which is why I chose to get deeper into media. And it was also subject for me in school, which is why I got very interested in it. What I plan on doing further is I want to join IIMC. I want to take up ADPR, and I think that's like a good mix of different kind of mediums, as well as it's something very futuristic. But what happens after that is something I cannot really think about just yet. But this is something that I have in my mind for the time being. नाइस नाइस. सिद्धार्थ जी, आपने आपने कहा भी था कि आपने पढ़ाई नॉन मीडिया बैकग्राउंड आप हैं, लेकिन अब आगे क्या सोच रहे हैं? आगे कौन सा करियर या कौन सा सेक्टर लेना चाहेंगे मीडिया का? सर वैसे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लेकिन काफ़ी फैक्टर्स थे कि आई वाज मोटिवेटेड टुवर्ड्स आईएएमसी, क्योंकि एक मेरी हॉबी भी डेवलप हुई एमेचर रेडियो, हैम रेडियो आपने सुना हो, और साथ ही साथ आई एम वर्किंग विद एन एनजीओ जिसके अंदर मुझे पीआर का काम देखना होता है, रिपोर्टिंग भी मैंने उसकी तरफ से की है, आउटरीच का काम देखता हूँ. तो नेचुरली आई वाज मोटिवेटेड टुवर्ड्स द एडीपीआर कोर्स. तो आईएमसी में जाने के बाद मेरा यही मन है कि इफ आई चूज एडीपीआर तो शायद वो मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा. शायद मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पीछे एक छोटा सा रेडियो पड़ा है. जी सर, वो Correct. मुझे काफी समय से आकाशवाणी पर जो शाम की बुलेटिन आती है जी. वो सुनने की आदत है, तो इसीलिए. क्या बात है, क्या बात है. मतलब ऐसे ही टॉपर नहीं बन गया, कुछ ना कुछ है अंदर से इंटरेस्ट, तब जाके ये सब जो है पैशन निकल के आता है ना. ताकत लगानी पड़ती है पढ़ने के लिए, तो वो डेफिनेटली आपने लगाई है. आपका इंटरेस्ट ऑफ वेरी है, तभी आप टॉपर बने हैं. वेरी नाइस. औसिन जी, आपकी पढ़ाई किस तरह से रही है और आगे कौन सा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहेंगे, कहाँ पे? सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स. तो मेरा बैकग्राउंड तो लिटरेचर का ही रहा है, लेकिन आईआईएमसी मेरा अभी से प्लान नहीं था, बल्कि स्कूल का एक मतलब चाइल्डहुड ड्रीम कह सकते हैं वेरी वो था. नाइस. और वो शुरू ऐसे हुआ था कि मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक था. मतलब दिन रात रेडियो मुझसे छुड़वाना पड़ता था कि अब और ईयरफोन मत लगाओ या और वो मत करो. और मुझे मतलब बाय हार्ट सब याद होता था, उनके जिंगल्स और आरजेस और कौन से शोज हैं, किस टाइम आते हैं, किस टाइम खत्म होते हैं, और जो एडवर्टीजमेंट्स आती है सब कुछ. तो उस टाइम मैंने सर्च किया था कि हाउ टू बिकम अ आरजे. उस समय बहुत पॉपुलर थे क्योंकि आरजे अब थोड़ा फिर भी उनका क्रेज थोड़ा कम हो गया है. बट और तो तब आया था कि मतलब फिर मैंने वहां पे देखा आईआईएमसी का नाम, और मैंने अपनी डायरी में लिख दिया कि इस एज पे ग्रेजुएशन करनी है,
इस एज पे IIMC जाना है और इस एज पे ये करना है, इस एज पे जॉब लग जाएगी और सब सॉर्टेड। और I just forgot about it during my graduation years and I can't believe कि किसी तरह मतलब मैंने अपना MA ड्रॉप किया और एक ही ऐसा डिसीजन लिया डेयरिंग की ड्रॉप लेते हैं और जो लिखा है डायरी में वो सपना पूरा करते हैं और वो होने भी जा रहा है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। मतलब इट्स अनरियल, रियल होके भी अनरियल है क्योंकि जो लिखा वो पूरा हो गया। तो बहुत ही बढ़िया। आई आपकी जर्नी तो काफी यूनिक है, उस हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग भी लगा आपको सुन के ये तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जयवीर जी, आपकी क्या ग्रेजुएशन वगैरह किसमें हुई है? I have been reading newspaper from the class 6th. Firstly, it was a Hindi newspaper, Rajasthan Patrika, you are aware of it. Then after 12th class, I started to uh, read English newspapers. Slowly, I started it. And it was my keen interest to read newspapers. Still, I am very interested in reading newspapers of every kind. Hindi, English, entertainment kind of that, pleasure kind of that, and every kind of newspapers I have been reading. And that motivated me to join this research. Because whatever you are reading, it affects your personality. Uh, before coming here, I was preparing for civil services also, and that civil services, all the preparation of civil services also helped me to bring me here, and in my preparation also. So that's how I chose to a part of IIMC and I part of your class. And firstly, I belong to Bharatpur, Rajasthan. You know about that place that is in the deep hinterlands. And from that place, dreaming about IIMC and dreaming about these kind of things is a little bit different. Yes. आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं IIMC में पढ़ता था, 2018 की बात है, उस समय राजस्थान से इतने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे। कुछ दिन पहले ही मैं IIMC में प्रोफेसर लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों है, या आपकी वजह से या किसकी वजह से, मैं नहीं जानता कि मेरी वजह से, यार राजस्थान से काफी ज्यादा लोग जो है IIMC पहुंचने लग गए हैं। पहले राजस्थान का मतलब इक्का दुक्का एक्सेप्शन होता था, हाँ, अब जो है राजस्थान से काफी स्टूडेंट्स जो हैं IIMC पहुंच रहे हैं। सैयद जमाल जी, कहाँ हैं आप? प्लीज हाजिर होइए। वेरी गुड इवनिंग में, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ऑडियो आ रही है। अ, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की और क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके रहे हैं, क्या टिप्स जो हैं आप नए एस्पायरेंट्स को देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, माय नेम इज जमान एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन पॉलिटिकल साइंस, एंड सर दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और कोइंसिडेंटली सर ये लास्ट भी था मेरा, एज पर दी एज क्राइटेरिया ये लास्ट अटेम्प्ट था। सर सोर्सेज जो है वो मैंने 5 सोर्सेज फॉलो किए, वो मैं बताऊंगा क्लियरली जो भी फॉलो किए। जी। पहला तो सिलेबस, और सिलेबस CUET PG का नहीं, CUET UG का। यस, 318 PG का नंबर सर, का, जो मैं हमेशा से बताता ही रहता हूँ कि उसमें 6 लाइन लिखी है ही नहीं सिलेबस आपका, है ना? वो 6 पॉइंट्स क्यों है, तो वो सिलेबस नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो हम्म। CUET PG UG सिलेबस है सर, वो मेन सिलेबस है। दूसरा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 8 इयर्स के। टेस्ट सीरीज सर मैंने 2 फॉलो करी है। एक तो टेक्स्ट बुक का पास था मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का पास था मेरे पास। तो उसमें मतलब एक ही टेस्ट सीरीज थी उसकी, CUET PG वाली। और दूसरा आपका मीडिया एग्जाम्स वाली टेस्ट सीरीज थी, उसमें अराउंड 120, शायद 120 टोटल टेस्ट थे, सेक्शनल मिलाकर और फुल लेंथ 120 मिलाकर से भी ज्यादा अराउंड। टेस्ट आपको लास्ट तक मिल गए थे टोटल मिला के। इसमें 31 यस सर। कॉम्पिटिटिव टेस्ट थे और हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट था। फिफ्थ जो सोर्स था वो मेरे खुद के नोट्स, वो नोट्स जो सिलेबस से डिकोड करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, यूट्यूब से और टेस्ट सीरीज से जो नोट्स बनाए थे, वो मेरे हैंडमेड नोट्स। और जैसे कि ओशिन जी ने भी कहा था कि वो शॉर्ट नोट्स, बस बुलेट पॉइंट्स, 1-2 लाइन में। और वो 1-2 लाइन वाइन कितने काम आए क्वेश्चन एग्जाम में, वो मैं बताऊंगा कैसे काम आते हैं। फिर सर थर्ड चीज जो है वो है प्लानिंग, हाउ टू प्रिपेयर कैसे करना है आपको। पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप माइक्रो सिलेबस बनाएंगे खुद का। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पर्शियन गल्फ वॉर पे, क्वेश्चन आ चुका था पहले भी। एक क्वेश्चन कारगिल वॉर पे भी आ चुका था। तो अगर हमने बस इतना ही सर्च किया होता कि वो किस ईयर में हुआ था, पर्शियन गल्फ वॉर किस ईयर में हुआ था, कारगिल वॉर किस ईयर में हुआ था, और इस साल का जो क्वेश्चन है वो यही था कि अरेंज करिए इनको करेक्ट सीक्वेंस में, वियतनाम वॉर को, पर्शियन गल्फ वॉर को, कारगिल वॉर को और रशिया यूक्रेन वॉर को।
अगर आपको वो दो भी पता होते, उनके ईयर पता होते, आप यहाँ पे उसको अरेंज कर लेते। वैसे पूरा पेपर ही ऐसा था जिसमें अगर आपको एक दो चीजें पता है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, सोल्व हो जाएगा। यही तरीका है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। सर कंटिन्यू। एक क्वेश्चन जो था शॉर्ट, और वो उसके डिस्क्रिप्शन वाला जो क्वेश्चन था, ये कई हम्म। लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने हम्म। देख के ही उसको कि इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। पर हम्म। अगर उसमें वो देख, एक उसमें टर्म था पैनिंग वाला। सर ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में था, जो क्वेश्चन आपके इसमें मॉक टेस्ट में सॉल्व किया था, ये पैनिंग वाला क्वेश्चन उसमें था, तो मुझे पैनिंग आता था। हम्म। पैनिंग से जब मैंने मैच किया तो उसमें दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। हम्म। ट्रैकिंग शॉट को उसका लिटरल मीनिंग निकालिए कि ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है। तो हम्म। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है करना, और डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ था कि अ शॉट दैट फॉलोज अलोंग अ सब्जेक्ट थ्रू आउट। इसको हम्म। मैच कर लिया सर, आंसर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से आंसर निकाले जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सही बात है। अब चलिए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये वाला जो आया था बुक और ऑथर वाला, एल्विन टॉफलर वाला, डिफिकल्ट है सर ये। बट ये हम्म। मेरे नोट्स में था, टॉफलर थर्ड वे। और मैंने ट्रिक भी बनाई थी इसकी कि जहाँ पे टॉफलर आ रहा है तो टो करके ट्राई करके या थर्ड वे वैसे करके कुछ भी निमोनिक से हम्म। ट्रिक बना के हम लोग याद करते हैं उसको। तो वो मैंने ऐसे याद कर लिया, और देखिए वो एग्जाम में आया और वो मैच कर लिया। एक जैसे वफा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ पैलेस्टीन, इससे हम्म। पहले रशिया की पूछी एक बार, कई बार हम्म। रशिया की पूछी है। किस करके? डबल एस वाली जो एजेंसी थी उनकी, रशिया वाली। यस हम्म। सर। इस बार टास्क पूछिए कि वफा की न्यूज एजेंसी वो कहाँ की है, पैलेस्टीन। यस सर। और पैलेस्टीन न्यूज में रहा है काफी, तो हो सकता है इसलिए भी उन्हें पूछ लिया उन्होंने इस बार न्यूज एजेंसी। तो लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं सर, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम बिल्कुल। उसको मैंने तो डिकोड कर सकते स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या कहा, आप मेरे सारे यूट्यूब लेक्चर देखिए। हर स्टूडेंट को ये कहा कि मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू सोल्व करके दिए हुए हैं आपको। आप जाके उनके डिस्क्रिप्शन को भी अगर पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं GW गिफ्ट के बारे में पढ़ा रहा था। पिछले साल आया हुआ है GW गिफ्ट। तो मैं लाइव क्लास में बर्थ ऑफ नेशन के बारे में बता रहा था कि जो मूवी काफी शुरुआत की मूवी थी, काफी कंट्रोवर्शियल थी, वो आ गई आपके मैचिंग वाले MCQs में। तो बहुत सारी चीजें थी। और लाइव क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पूछता था आपसे कि बताओ फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, आ गए। CDS के बारे में पूछा था, आ गया। तो ऐसी जो हु इज वो वाले 7 क्वेश्चन इस साल के पेपर में आए हैं। तो ये तो बेसिक सी चीज है, अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा। मैं स्टार्टिंग करता हूँ प्रधानमंत्री सीरीज से। 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री सीरीज से है। अगर आपने PYQs कर लिया, अगर जो मैंने बेसिक बेसिक बता दिया, तो 150 नंबर तो आपके वैसे ही आने चाहिए थे। अब जिस भी एस्पायरेंट के 150 नंबर नहीं बने, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसने PYQs को ही ठीक से नहीं देखा। उसको जो बेसिक करके जाना था उसने वही नहीं किया। और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की, उसने वही नहीं की। और कैसे होता है ये बिना टेस्ट सीरीज के जो है पॉसिबल नहीं है। कोई भी ये कह सकता है कि वी डिड द सेल्फ स्टडीज, लेकिन आप सेल्फ स्टडी भी बिना टेस्ट सीरीज के नहीं कर सकते। UPSC वाले कई लोग कहते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी की थी। अरे सर, आपने जिसकी टेस्ट सीरीज लगाई वो एक कोचिंग वाले ही बनाते हैं। बिना टेस्ट सीरीज आप कैसे जो है प्रिपरेशन कर लोगे? ठीक है। और जितना हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आप देखिए आफरीन जी के 296 पहुंच गए हैं। आप में से किसी के 224 है, 230 है, ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक हाई स्कोर है और ये हर साल बढ़ता जाएगा। बिना प्रैक्टिस के आप हाई स्कोर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल नॉलेज के बेसिस पे जो है पेपर सोल्व नहीं होता। आपको एलिमिनेशन मेथड डेवलप करना होता है, आपको स्मार्ट बनना होता है। तो ये सब बातें आप सब लोगों ने भी बताई, मैंने भी काफी एड ऑन कर दिया। और मुझे आप सब लोगों की जर्नी जो है काफी अच्छी लगी। सबका अलग अलग जो है यूनिक वे में जो है आपने प्रिपरेशन की है। किसी ने न्यूज़पेपर फॉलो किया, तो किसी ने यूट्यूब चैनल्स जो है फॉलो किए हैं, किसी ने PYQs पर भी काफी फोकस किया है, किसी ने टेस्ट सीरीज, और तो किसी ने लेक्चर्स पे ज्यादा फोकस करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने सबकी टिप्स जानी, सबकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जानी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। अगले सेशन में भी जो है हम अदर टॉपर्स के साथ में बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं सबका जो है धन्यवाद करना चाहूंगा, आफरीन जी का, सिद्धार्थ जी का, ओशिन जी का, जयवीर जी का, सैयद जी का। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने हमारे साथ, आप सब लोग जुड़े और हम पर भरोसा किया। और आज के सेशन में आप अपना टाइम देते हुए सबको गाइड कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।